जी सर लगा दें। Okay, so chapter number 4 is we're going to cover today. That is about emotions and moods. Right. So we've got in the last lecture we talked about attitude and behavior, right? And we discussed that behaviors are more action oriented, while attitude, they are permanent tendencies generally, right? They're more enduring. Attitude, um, especially at the workplace, can be influenced by a number of factors, and then once you develop an attitude, either negative attitude or positive attitude, it has consequences for the organization, right? So today we are moving forward. We are going to see emotions and moods and how do they affect the workplace. So we would first differentiate between emotions and moods, identify the sources of emotions and moods, show the impact of emotional labor has on employees, describe effective events theory. The events that take place around us within an organization or otherwise, uh, how do they affect our personalities, how do they affect our actions, how do they affect our performance, right? And then we would also discuss emotional intelligence. You might have heard about emotional intelligence. It's a buzzword these days, right? Many people believe that the better predictor uh, you know for evaluating the suitability of a personality, suitability of a person for the organization is not the IQ, intelligence coefficient, rather it should be EQ, which is emotional intelligence coefficient. So we'll discuss what emotional intelligence is and how does it influence the working in the organization as well as uh, life in general, right? And then we would also identify strategies for emotional regulations. How can we regulate emotions? Can we, at the first, first of all, can we regulate emotions at all or not? Because many people, when you talk to them, they say, I can't do anything because these are just emotions. I can't control. So we'll discuss how we can control and regulate our emotions, right? And then we would apply these concepts about emotion and moods to specific organizational behavior and workplace issues, right? Okay, so as we discussed in the last lecture, uh, affect is something associated with your emotions, right? So affect, mood, and emotions. So basically, affect is anything, a broad range of feelings people experience. So affect can be experienced in the form of emotions or moods, right? So two types of affect. One is emotions, the other one are moods, right? So what are the emotions? What is the difference between emotions and moods? Emotions are caused by सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बाकियों को भी नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर। आ रही है सर। सर आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है सर। अच्छा, आसन भाई, वो मेरा आपकी वो होगा कोई, जरा रीस्टार्ट करके देखें, रीसेट करके देखें, शायद ठीक हो जाएगी। जरा कोई बंदा ना इसे मैंने स्लाइड्स ऑन की हुई, चैट में लिखते हैं कि रीसेट करके आसन देख ले तो ठीक हो जाएगा। सो ओके, इमोशंस and moods.
अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप अक्सर ये चीज कहते हैं कि वो बंदा बड़ा इमोशनल हो गया था, हैं? तो आम तौर पे जब आप ये बात कर रहे होते हैं, यू आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर इवेंट कि जनाब इधर हुआ, उसने गाली दी और बंदा आगे से इमोशनल हो गया, ठीक है, वो फलां बंदे ने उससे ये किया, किसी तरह से उसे हर्ट करने की कोशिश की, वो इमोशनल हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप बोलते हैं ना मूड, आम जुबान में भी, तो आप क्या कहते हैं? 2-3 दिन हो गए उसका मूड खराब है। ये नहीं आप कहते कि वो 2-3 दिन हो गया इमोशनल हुआ हुआ है। ये बात ठीक है ना? आप देखें कि जब आप इमोशन, ये आम लफ्ज़ों की मैं बात करूं, द वे वी यूज, राइट। अब आप अभी हम इसे रिलेट करते हैं थियोरेटिकल फाउंडेशन के साथ भी, लेकिन अमूमी तौर पे यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशन एंड मूड्स, इमोशंस, व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशंस, आप ये कहते हैं कि जनाब, या अगर आप ये भी कहें ना कि वो बंदा बड़ा इमोशनल है, it means that he reacts to different events very emotionally. So no, normally emotions are caused by a specific event, right? Whereas moods, the cause is often general and unclear. 2-3 4 दिन आप you feel very down, you do not feel in the right mood, और आपको कई दफा खुद भी नहीं पता होता कि क्या वजह, कुछ हुआ होता है लेकिन आप पूरी तरह, कुछ वाकयात होते हैं, आपसे कोई पूछे कि परेशान हो, आप कहते हो नहीं, हालांकि वो मूड खराब होता है, ठीक है ना? तो जो इमोशंस हैं स्पेसिफिक इवेंट ट्रिगर करते हैं, नंबर 1, ठीक है। और एक्शन फौरन होता है, उसका रिएक्शन होता है, जबकि मूड जो है, sometimes we do not, the courses, the cause is often general or unclear, right? Second thing is, emotions are very brief in duration, seconds or minutes. ये नहीं होगा कि जनाब किसी को गुस्सा आया और पता चला है कि वो 8 घंटे हो गए गुस्से से बोल रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा स्टेमिना वाला बंदा भी हो हैं कि 8 घंटे से गुस्सा, 10 घंटे गुस्सा के जनाब मैंने 5 दिन का गुस्सा मनाना, मुश्किल ही है? सुना है कि घरों में मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो उसमें काफ़ी देर तक इमोशनल सेशन चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 10-15 मिनट से ज़्यादा मुश्किल ही है। जो मूड होता है ना, इट कैन लास्ट फॉर आवर्स और डेज। मूड ऑफ है, कई के दिन मूड ऑफ, हैप्पी मूड, कई के दिन खुश रहते हैं। जिंदगी में ऐसी खुशी आई कि जो है ना, जिसने आपको अंदर बाहर से जो है ना वो खुश कर दी, तो आप बड़े दिन जो है ना वो खुश रहते हैं। कोई घर में खुशी आ जाती है, कोई बाहर कोई अचीवमेंट हुई, जॉब नहीं मिल गई, महीना 2-2 महीने पहले, तो मतलब जब तक कि कोई शुरू की, अगर आप दिन याद करें, जो लोग जॉब करते हैं, पहले जब शुरू करें बंदा, पहले 1-2 महीने तो ऐसे होता है कि जैसे आसमान में उड़ रहा है। मतलब पहली जॉब भी वो कहते हैं पहली मोहब्बत की तरह होती है। कोई याद है फवाद साहब को पहला काम जब शुरू किया था, पैसे आने शुरू हुए थे, किसी और को कोई याददाश्त हो? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही फीलिंग होते हैं कि बिल्कुल एक नया वेंचर या नया काम, और वो जो है उसकी अपनी एक एनर्जी, मोटिवेशन, अट्रैक्शन होती है। एग्जैक्टली। और तो वो एक्साइट करते हैं, एक्साइटमेंट वो क्रिएट करते एक्साइटमेंट होती है। सर इसमें एक्सक्यूज मी सर, इसमें ये भी होता है कि जब ज्यादा पैसे आ जाएं या फर्स्ट टाइम आए, अनएक्सपेक्टेड जो है आपके पास कोई ऐसा बैलेंस आ जाता है किसी बिजनेस से, तो इंसान के ऊपर बायोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं उसके ना, खुशी से। तो इवन के नींद भी उड़ जाती है, नींद तक नहीं आती लोगों को। नहीं, ठीक वो है। तो देखे ना, जो अनएक्सपेक्टेड की आप बात करें वो तो इमोशनल रिएक्शन होता है ना, लेकिन जनरली मैं मूड की बात कर रहा हूँ कि आप खुशी के दिन आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पहली जॉब, पहला यानी दाखला हो गया, बंदा तो नॉर्मली ये
मूड जो है ये परसिस्ट करता है, यानी 2 घंटे के लिए नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, देन कम स्पेसिफिक एंड न्यूमरस इन नेचर इमोशंस. Emotions are specific and numerous in nature. Many specific emotions such as anger, ये भी हम पढ़ते भी आगे, anger, fear, sadness, happiness, disgust, surprise, uh, frightened, बेशुमार इमोशंस होते हैं, ठीक है ना। उसके मुकाबले में जो मूड है ना, वो जनरली ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं. वन इज पॉजिटिव, राइट, और नेगेटिव. सो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट, राइट. इसमें डिफरेंट इमोशंस जो हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली मूड को हम कहते हैं आइदर पॉजिटिव मूड और नेगेटिव मूड, राइट. सिमिलरली emotions, they're usually accompanied by a distinct facial expression. आप फेशियल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें ना, तो जब आपको कोई चीज नागवार गुजरती है तो चेहरे पे आ जाती है. जब आपको गुस्सा आता है तो चेहरे से नजर आता है, ठीक है. जब किसी के लिए दिल में प्यार उठता है तो आंखों में और चेहरे में झलकता है. तो इसके मुकाबले में जो मूड होता है ना, वो जनरली कुछ जरूरी नहीं कि डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन आपको पता है. अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा वो आगे डिस्कस भी आपसे करूंगा. जो एक्सप्रेशन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन की जो हमने बात की, ये डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट होता है. यानी कई कल्चर जो हैं वो रिलेटिवली दे आर लेस एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, कई बहुत ज़्यादा है, ठीक है. मसलन चाइनीज़ अगर आप देखें ना, तो वो बड़े मतलब यानी चेहरे पे इमोशंस उनके इतनी जल्दी नहीं आते, लेकिन फिर भी किसी ना किसी हद तक उस कल्चर के रहने वाले समझ जाते, राइट. तो कल्चर डिफरेंसेस, दो के कल्चरल डिफरेंसेस आर देयर, राइट, but one way or the other people do express their feelings, right, their emotions. Where the mood generally not indicated by distinct expressions, right. और लास्ट हम ये बात कर रहे हैं कि action oriented in nature. Emotions are action oriented in nature while the mood is cognitive in nature. ये मैं अगर एक मिनट आपको बताता हूँ कि क्या मतलब है इसका. अच्छा जी, अगर आप ये हम मैं इकरा कुछ कहना चाह रही हैं और जी जी उनकी जी आवाज़ वाजे नहीं है. जी जी इसकी आवाज़ शायद वाजे नहीं है. इकरा ट्राई करें प्लीज़. इकरा बोलें. आवाज़ बहुत दूर से आ रही है आपकी. अब आ रही है आवाज? कुछ बेहतर हुई है. लाहौर नहीं पहुंची अभी पूरी. अच्छा, तो मैंने ये
सर के क्वेश्चन ये था कि जिस तरह मूड को हमने कैटेगराइज किया है पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है, इसी तरह इमोशंस भी क्या हमें सर आपको क्लासिफाई इसकी करना आवाज़ होगा क्लियर है? नहीं जी, जरा नहीं आ रही। मैं तो सर सर जरा मैं टाइप करके पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं, आप थोड़ा ऊंची बोलने की कोशिश करें ना, माइक को और करीब करें। अब आ रही है आवाज अब आ रही है? नहीं, अब आ कोई रही है फर्क आवाज? नहीं है। नहीं, फर्क नहीं है कुछ। ठीक है, आप टाइप करके पूछ लें फिर। टाइप करके पूछ लें। और उसको सब चिड़ियों के दरमियान लगता है बैठे हुए हैं, तोतों के दरमियान। जी सर। अच्छा। ऐसे ही है। पिंजड़े से थोड़ा दूर हो जाना। है। नहीं, माइक म्यूट कर दें, बाकी पिंजड़े के अंदर चल जाए ओके बेशक। ओके ओके ओके। अच्छा जी, ये जरा ना एक मैंने आपके साथ फाइल शेयर करता हूँ, या वेल इधर ही आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ ना। ये आपको नई स्क्रीन नजर आ रही है? टेनिस प्लेयर। जी सर, आ रही है नजर। जी सर आ आ रही। रही है नजर यस सर। सर। अब आप अंदाजा करें ना कि ये फेशियल एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा था ना, देयर आर कल्चरल डिफरेंस। अब बज़ाहिर देखने वाला क्या नजर आता है कि यार कोई रो रही है किसी बात पे, हालांकि हो ये रहा है कि वो जीत गई है और उसकी खुशी मना रही। ठीक है, आप अंदाजा करें कि आप इस तरह पाकिस्तान में किसी को खुशी मनाते देखेंगे? सर ये तो लग रहा है कि गुस्से से शाउट कर रही है। वही ना। अब ये मैं बात आपसे कर रहा था कि जो फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना, people do express facial expression, the way they express is different from one culture to another। और ये बहुत सारी आपको एग्जांपल्स और भी, मतलब मैंने खोली कुछ चीजें, लेकिन ये मुझे बड़ा एक आइडियल सा केस एक लगा। जी सना, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैडम सना, आपने कुछ पूछना है? सना ने रेस हैंड किया था। अच्छा चलें। सो अब ये कल्चरल डिफरेंसेस हैं इसमें, हैं। अच्छा, अब दोबारा स्लाइड्स में हम आते हैं। 6 essentially universal emotions: anger, fear, sadness, happiness, disgust, सरप्राइज। ये तकरीबन सारी दुनिया में देयर लोग गुस्सा करते हैं, सारी दुनिया में गुस्सा करते हैं। हाँ, ये हो सकता है किसी जगह कम करते हो, किसी जगह ज्यादा करते हो, लेकिन गुस्सा करते हैं। यानी यूनिवर्सल इमोशन है, इसकी डिग्री वेरी कर सकती है। द स्टाइल ऑफ शोइंग एंगर कैन वेरी, राइट। किसी जगह पे गुस्सा करो तो थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं बच्चों को, किसी जगह पे गुस्सा करते हैं पेरेंट्स फॉर एग्जांपल, तो बच्चों को आंखें दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन गुस्सा इटसेल्फ एक एंगर इज अ यूनिवर्सल इमोशन। सिमिलरली फियर, सैडनेस, हैप्पीनेस, disgust,
dislike few things, you know, surprise. अब again ये जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि surprise, the way you express it may be very different from in one culture to another, right? अगर आप ये देखें, मैंने कई दफ़ा फेशियल एक्सप्रेशन की मैं आपसे बात अभी कर रहा था कि चाइनीज आर लेस एक्सप्रेसिव, तो वो कई दफ़ा ये लगता था कि वो बिल्कुल सुन ही नहीं रहे बात। मैं जब शेफील्ड में ना पढ़ाता था तो मेरे काफ़ी सारे चाइनीज स्टूडेंट, तो कई दफ़ा लगता था कि उन्होंने सुनी नहीं है, लेकिन वो पता चलता था कि सुन के तो पी गए हैं। तो उतने फेशियल एक्सप्रेशन उनके नहीं होते। हमारे यहाँ कई जो है ना, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में बड़े स्ट्रॉन्ग फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, राइट? सो there are different emotions, however the degree may vary from one country or one culture to another culture, and at the same time that's the way they express also varies. Then comes moral emotions, emotions that have moral implications because of our instant judgment of the situation that evokes them. Moral emotions, instant judgment of moral emotions क्या हैं? ये आपको अंदाजा है कि मोरालिटी इटसेल्फ बड़ा abstract concept. Things which are moral for us may not be moral for others. Things which are unacceptable in moral sense for one culture are totally acceptable in another one. जैसे आपको पता है कि अगर हम ड्रेसिंग में देखें तो वेस्ट में स्कर्ट पहनना जिसमें आप बेयर स्कर्ट्स विद बेयर लेग्स, राइट, दैट्स टोटली एक्सेप्टेबल, बल्कि बहुत सारे स्कूल्स का यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ ज़ाहिर है ये चीज़ बड़ी अजीब समझी जाती है, और इसी तरह इमोशंस, मॉरल इमोशंस बहुत सारी चीज़ों के बारे में, यानी शर्म हया के बारे, मिसाल के तौर पर कहते हैं कि मशरकी लड़की जैसे ही उसके माँ बाप ने या उसको फलां ने शादी की बात की तो शर्म से चेहरा सुर्ख हो गया है, इमोशनल रिएक्शन। अब बहुत सारी जगहों पे इस तरह के चेहरे सुर्ख नहीं होते, या हमारे शर्म से नजरें झुका ली हैं, तो शर्म से नजरें झुकाने का हो सकता है कई जगहों पे ये मतलब हो कि ये नहीं तैयार, ये नहीं करनी शादी, ठीक है ना। सो मॉरल जो मोरालिटी है ना, ये हम मॉरल इमोशन ये हम बचपन में सीखते, हमें बताया जाता है ये चीज़ ठीक है, ये नहीं है, इससे ये वो, यानी छोटे छोटे फिक्रे। छोटा सा बच्चा होता है, वो मतलब उसने कपड़े नहीं पहने होते हैं, हम उसे छेड़ते हैं, शेम शेम है, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता वो पिक कर जाता है कि कहाँ पे मेरी लिमिट्स है, कौन सी चीज़ जो है वो मैंने वो ऐसी चीज़ है जो कि माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। आप यानी आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को पता चल जाता है, बड़े जूं बड़े होते हैं आपको कई दफ़ा एक्सप्रेस नहीं करना पड़ता, वो इर्द गिर्द से खुद ही पिक कर लेता है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि मोरालिटी में आती है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो मॉरल बाउंड्रीज में नहीं आती, राइट। सिमिलरली जी, कोई बात कोई कहना चाह रहा है, आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, अब कोई हल्का सा शोर आ रहा है। मकसूद साहब माइक को माइक तरफ, मकसूद इकरा ने कहा है कि क्या इमोशन भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। इमोशंस लेकिन अगर हैप्पी हैं
तो आप उससे पॉजिटिव ले लें, लेकिन हो सकता है आपका खुश होना किसी को अच्छा ना लग रहा हो, उसके लिए नेगेटिव होगा। लेकिन यस, आई मीन पॉजिटिव टेंडेंसीज होती हैं, लाइक एंगर जो है वो एक काइंड ऑफ नेगेटिव टेंडेंसी है, लेकिन जनरली हम इसे इसलिए बड़ा यानी क्लियरली पॉजिटिव या नेगेटिव में हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आप अपसेट हैं, ठीक है ना, आप कहते हैं मैं बड़ा टेंस हूँ या अलर्ट हैं बड़े हैं, अब इस केस में पॉजिटिव या नेगेटिव टेंडेंसीज डेफिनेटली हैं, ठीक है। आप अगर अपसेट हैं तो इट इज टुवर्ड नेगेटिव साइड, राइट। लेकिन हम जनरली इन इमोशंस को, इमोशनल रिएक्शंस को पॉजिटिव या नेगेटिव में यानी इनके लिए नाम यूज नहीं करते, राइट। Look at the structure of the mood. We've got, you know, high negative effect, uh, high positive effect. High positive effect जब होता है, feelings होती हैं, you are excited, elated, happy, right? High negative means you're very nervous, upset, sad, stressed, tense, right? Similarly, सॉरी ये मेरा हाल गलत लिखा हुआ है, ये जी तला। There's a question. What's difference between tense, stressed, and depressed? ये तीनों terms में सर क्या difference? देखें जो डिप्रेस्ड है ना, ये एडवांस फॉर्म है स्ट्रेस की। टेंस का मतलब है डेफिनेटली यानी आप टेंस हैं, परेशान है, लेकिन यू नो स्ट्रेस मीन स्ट्रेस इंड्योरिंग होता है। आप उस टेंशन वाली सिचुएशन से आप एक परमानेंट चले जाते हैं इस स्टेट में कि यू फील कॉन्स्टेंटली बर्डन, कॉन्स्टेंटली फील अंडर यू नो यू फील योरसेल्फ अंडर एंजाइटी, राइट। और डिप्रेशन जो है ना उसकी एडवांस फॉर्म है। व्हेन यू फील डिप्रेस्ड, इसका मतलब है कि आप स्ट्रेस से अगले लेवल पे चले गए। When you have some kind of psychological or mental साइकोलॉजिकल, issues. हाँ देखें साइकोलॉजिकल तो हर बंदा किसी ना किसी हद तक साइको जनरली ना। अब उसकी वजह हम सारे के सारे आप अंदाजा करेंगे कि किसी न किसी स्टेज पे हम स्ट्रेस होते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीजें जरूर होती हैं जिससे वो स्ट्रेस बहुत बढ़ भी जाता है, लेकिन कितनी देर तक रहता है, ये क्या वो बीमारी की कैटेगरी में आ जाता है या नहीं, ये एक अलग क्वेश्चन। लेकिन जनरली वी ऑल वी हैव फील, एनीबॉडी हु हैज फीलिंग वुड हैव you know times of stress, times of depression, times of nervousness, times of tension, right? He'll be happy sometimes, he'll be sad sometimes, right? So ये अगर हम ये कहें ना इसको कि कोई खास तरह के लोग होते हैं जो मरीज होते हैं, वो बात सही है, उनमें रिलेटिव टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है डिप्रेशन, लेकिन जनरली और वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो अफेक्ट करता है उनकी बॉडी को, उनकी डे टू डे वर्किंग को। लेकिन हर बंदा किसी ना किसी लेवल पे, कोई ऐसा बंदा जो बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा भी है ना, जो समझता है मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं, वो भी स्ट्रेस होता है, उसको भी स्ट्रेस होता है। So in simple words, we can just say that depressed is advanced form of stress. Depression is more severe. Yes. ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव इफेक्ट अगर आप देखें, हैप्पी, एक्साइटेड, एलेटेड, यू नो, ये असल में ना ये इन्होंने उलट डाल दिया हुआ थोड़ा सा, ये लो पॉजिटिव इधर आना चाहिए इस जगह पे। कंटेंट, serene, relaxed, calm, positive है, low positive, right? Low negative could be, ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, tense, stress, nervous, upset, that is low negative, और
high negative is sad, depressed, bored, fatigued. That is high negative effect, right? Okay, so emotion state, percentage of people who reported experiencing emotions on daily basis. अब यहाँ पे cultural differences भी हैं. Philippines 60% people every day they feel emotions. United States 54%, United Kingdom 48%, Taiwan 45%, India 43%, Russia 37%, सिंगापुर मच लेस. मैं भी आपसे बात कर रहा था ना कि चाइनीज और ये जो रेसेस है ना, ये बड़े इमोशनली जनरली लेस एक्सप्रेसिव होते हैं और थोड़े बहुत कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल भी ज्यादा होता है. तो ये आप देखें सिंगापुर 36%. इसका मतलब ये हुआ कि वो सारी चीजें जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब करती हैं वो डिस्टर्ब डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लेवल पे करती हैं. और उसकी वजह क्या है? आई मीन देयर कुड बी so many reasons. You know, your childhood upbringing, your culture around you, the training, school, वगैरह वगैरह. एक ये भी हो सकता है कि वो हो सकता है स्कूल ट्रेनिंग. मतलब सिंगापुर में आमतौर पे कहते हैं जी वो बच्चों को बड़ा स्ट्रिक्टली डील करते हैं स्कूल्स में, और पेरेंट्स भी समटाइम्स जो मतलब स्टडीज के बारे में, और स्कूल में बड़ा यानी बच्चों पे सख्ती भी करते हैं, और बच्चा नहीं बिहेव करता उसको पनिशमेंट भी देते हैं. अब वो कई दफ़ा बच्चे जो है ना वो मेंटली रेडी हो जाते हैं चीज़ के इन सिचुएशंस को कोप अप करने के. कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में ऐसी कोई टफ सिचुएशन नहीं देखी, वो यूं ही ज़रा सी कोई चीज़ होती है वो उस पर इमोशनली रिएक्ट करते हैं. एक फैक्टर ये भी है. देयर कुड बी अदर फैक्टर्स, राइट. एक कल्चर होता है इमोशंस का कि सारे बोल रहे हैं, वो एक बोलता है उसने सीखा, दूसरा बंदा भी बोलता है, तीसरा जिसको मौका मिलता है अपनी अपना जो है गुस्सा निकाल रहा है. सो कल्चरल वेरिएशन, देयर इज आल्सो कल्चरल वेरिएशन इन इमोशंस, राइट, इन इमोशनल स्टेट. सो अच्छा, इसमें वेदर का भी कुछ ना कुछ ताल्लुक होता है. ये हम आगे देखते हैं वेदर का भी. पाकिस्तान में अगर आप देखें ना, गर्मी के मौसम में जो बंदा धूप में खड़ा हुआ फल बेच रहा है उससे आप ज्यादा बहस करते हैं, वो कहता है ये लेना लो नहीं तो जाओ. वो कहता है लेना है नहीं. अब या आप उसे कहते हैं जनाब कितने रुपए किलो आम, वो कहता है जनाब 160 रुपये. आप कहते हैं जी 120 से खा लो. वो कहता है जी मीनू लिया दो 120, मेरे को ले लो पैसा. गुस्सा करता है. तो कई दफ़ा वेदर का इन्फ्लुएंस भी इस तरह होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर या बहुत ज़्यादा सर्दी है, पीपल आर ऑलरेडी इरिटेटेड, राइट, और उस केस में दे आर जस्ट रेडी टू रिएक्ट. सो द मोमेंट they see something happening which they don't like, they would react, right. एक एग्जांपल इसकी मैंने आपको दे दिया कि जो आप रेडी से फल फ्रूट वगैरह खरीदते हैं उसमें आपने अक्सर ये चीज़ ऑब्जर्व की हो कि स्पेशली जब वेदर बहुत सीवियर वेदर में इसके इफेक्ट जो है वो आपको नजर आते हैं. इमोशनल स्टेट बढ़ जाती है, राइट. एक्सक्यूज मी सर. जी जी सर इसमें थोड़ा रिलीजियस फैक्टर भी आ जाता है. लाइक लोग फास्ट में हो तो उनका भी जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है. हाँ, हो सकता है. वो देखे ना, रोजे की हालत है. कंडीशन भी आपकी, अगर आप बड़ी देर से भूखे हैं और खाने को नहीं मिल रहा और कोई बंदा मतलब खाम में आपको तंग कर रहा है, तो जाहिर है वो रिएक्शन उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, डेफिनेटली. ऐसे ही है सर. ठीक है ना. तो okay, so the next is difference between emotion and mood. We've already talked about this, but in another sense, just to summarize this part, and restart the next one. Decision making, when we talk about decision making, right, we have to incorporate both thinking as well as feeling, right. So
emotion as well as cognitive evaluation. Cognitive evaluation as well as emotions, right? We cannot simply ignore emotions. So we'll discuss in the next part of the lecture, right? अभी यहाँ पे stop करते हैं क्योंकि वो time खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट इसमें आप इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे डिसीजन मेकिंग जो है that is a product of both thinking as well as feeling, right? Okay, so